جانب سے 70,000 فوڈ کٹ شہر حیدرآباد سکندرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں بشمول ان کا اسمبلی حلقہ شدران گٹا میں وہ دے چکے ہیں۔ یہ فقید المثال خدمات ہیں ان کی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہے۔ تقریباً 2 ماہ کے لاک ڈاؤن نے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف فاقہ کشی اور نقل مکانی کا دورہ ہے تو دوسری طرف جو لوگ اپنے آبائی مقام پر ہی ہیں اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ ملک پیٹ کے رہنے والے ایک ایسے ہی چپلوں کے تاجر محمد نذیر الدین نے آج بیگم پیٹ میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی سرکاری رہائش گاہ پرگتی بھون کے سامنے خودسوزی کی کوشش کی۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے کرتے پاجامے ملبوس بارش نذیر الدین کو ان کے اقدام سے بچا لیا اور انہیں پوچھ تاچھ کے لیے پنجاگٹے کے پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دیا۔ نذیر الدین نے میڈیا کو بتایا کہ وہ مالی دشواریوں سے پریشان ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے انہوں نے اپنا کرایہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ مکاندار کرائے کے لیے بار بار اصرار کر رہا ہے، وہ نہیں جانتے کہ ایسے میں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ خود کو غریبوں کا مسیحا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس غریب شخص کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ ملک پیٹ پہ اچھا ہاں ملک پیٹ پہ مبیر صاحب ہے صاحب، 2 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے، کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ کرایہ دینے کا جی ایم سی ٹیکس بننا بہت ریاستی وزیر صحت ایٹلا راجندر نے آج دعوے کے ساتھ کہا کہ کووڈ 19 جیسی وبا سے مرنے والوں کی تعداد حتیٰ کہ کیسز کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ کووڈ 19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وزیر موصوف نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ICMR گائیڈ لائنز کے تحت مختلف میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے پروفیسروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی ریاست میں مرنے والے ہر کیس کا جائزہ لیتی ہے اور موت کی وجہ بتاتی ہے، اور ہم اسی اصول اور ضابطے کو شروع دن سے ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈسچارج کرنے کی پالیسی پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ کووڈ 19 کے مشتبہ مریضوں کو اب ڈاکٹرز 14 دن کے بجائے 10 دن میں ڈسچارج کر سکتے ہیں اور انہیں کرونا وائرس کا تمام طبی معائنے کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کرونا وائرس کے دونوں قسم کے لوگوں کو ڈسچارج ہونے کے بعد بھی گھر میں 1 ہفتے تک تنہائی میں رہنا ہوگا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 68 مسافرین دہلی روانہ ہوئے، جہاں سے وہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ان تمام مسافرین کو ان کے ممالک ان کے اپنے آبائی شہر کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ طیارے میں سوار ہونے سے قبل ان تمام کی اسکریننگ کی گئی اور تمام سیفٹی پروٹوکول پر عمل کیا گیا۔ برکتوں والے مہینے رمضان میں روزہ داروں کے لیے قائد مجلس مخننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کی طرف سے شہر کے 7 اسمبلی حلقوں کے علاوہ مختلف علاقوں میں کھانے کے ہزارہ پیکٹس کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ بشمول بنگلہ گوڑا 5 مراکز پر تازہ کھانا پکوانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ان کی پیکنگ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ خصوصی DCM گاڑیوں کے ذریعے افطار سے قبل روزہ داروں تک ان کو پہنچانے کا بہترین نظم کیا گیا ہے۔ اکبر اویسی نے آج شام ان مراکز کا معائنہ کیا اور وہاں جاری کام پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے ان علاقوں میں بھی جہاں مجلس کے منتخبہ نمائندے نہیں ہیں، وہاں بھی کھانے کے پیکٹس اور راشن کٹس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ ان میں مختہ خیرت آباد، زہرا نگر بنجارہ ہلز، بھولک پور مشرآباد، دتاتریہ نگر گوشا محل وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکبر اویسی کے جذبے کی مختلف گوشوں کی طرف سے ستائش کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں
पर्दा नशीन माँ और बहनों की दुआएं, नौजवानों की दुआओं का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल करीब 2 माह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल इमदादी काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारी जानिब से जितने भी हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे के घर तक पहुंचकर उसकी भूख को मिटाएं और इस कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सरगर्म कारकुन, सुदूर व मुतमदीन व इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म कारकुन, अराकीन बल्दिया और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर्स साहिबान सब ने मिलकर इस काम को कामयाबी से अंजाम दिया है। और ये काम का आगाज़ हमने जब किया था तो उस वक्त सिर्फ 10,000 पैकेट्स राशन के बनाएंगे कहकर हमने काम का आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़रूरियात और हालात को देखते हुए उसको 25,000 तक पहुंचाया हमने, फिर बाद में 50,000, फिर बाद में 70,000, होते होते अब 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं और करीब 70,000 राशन के किट्स को हमने कामयाबी के साथ तकसीम भी किया है, जिसमें से करीब 40,000 के करीब राशन के किट्स हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में तकसीम हमने किया है और 30,000 पैकेट्स चंद्रायन गुट्टे हल्क़े से हटकर शहर हैदराबाद के दूसरे इलाक़ों में हमने तकसीम किया, जैसे कि राजेंद्र नगर है, हसन नगर है और फिर कारवान का हल्का है, हल्क़े असम्बली कारवान, हल्क़े असम्बली याकुतपुरा है और फिर भोलकपुर मुशीराबाद है, फिर उसके अलावा बोराबंडा है, बंजारा हिल है, खैरताबाद है, बेगमपेट है और फिर वारिसगुड़ा है, लालागुड़ा है, महमूदगुड़ा है और फिर इस तरफ रसूलपुरे के इलाके में भी हमने तकसीम किया और फिर उसके बाद में हफीज़ पेट है, कुकटपल्ली है, बहरहाल शहर शाहीन नगर है। ये शाहीन नगर में भी हमने हज़ारों पैकेट्स तकसीम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को कबूल करे। और इसके साथ ही साथ राशन के किट्स के साथ ही साथ सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने और हमारी टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 1 लाख पकाया हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख पैकेट्स। तो आज 1 लाख पका हुआ खाना जो हमने जिसका आगाज़ पहली रमज़ान से शुरू किया था और होते होते आज का खाना रोज़ हमारे पास बन रहा है। पहले 3,000 लोगों के खाने को पकाने के काम से हमने आगाज़ किया था और इसके लिए हमने मराकज़ बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे खाना बन रहा था। जैसा यहाँ पर करीब 2,000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था, हाफिज़ बाबा नगर में 1,000 आदमी का खाना बन रहा और फिर ईदी बाज़ार में आज़म कॉरपोरेटर साहब की ज़िम्मेदारी में करीब 15,000 लोगों का खाना बन रहा है। और फिर उसके बाद में ये ताला कुंटा और अलजुबैल कॉलोनी है, वहाँ पर हम जो खाना पकाने का जो कर रहे हैं वहाँ भी करीब 1,500 लोगों के खाने का इंतज़ाम। बहरहाल इस तरीके से हम पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे खाना बन रहा है और वहाँ से हम तकसीम कर रहे हैं।
اور 5000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں اور 2000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں اور پھر یقوبہ کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مخت مدار میں، ڈھولک پور میں، بنجارہ ہلز میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا میل حلقے اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 دن ہم روزانہ یاقوت پورے میں بھی روزانہ 700 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آج 5000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس سٹیشن میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں. تو ہم پولیس سٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس سٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی. پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی، اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو ہماری جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان سارے حفاظ کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1500 روپیے دیں گے، اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے. اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے. 19 بہادرپورے کے مجلس رکن اسمبلی معظم خان نے جہانما ڈویژن کے گلشن نگر میں آج 850 سے زائد افراد میں راشن کے کٹس تقسیم کیے. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر حسینی پاشا اور دیگر مجلسی کارکن بھی ان کے ہمراہ تھے. معظم خان نے بتایا کہ مجلس اور مبان مجلس لاک ڈاؤن کے آغاز سے اب تک غریب اور مستحق افراد میں غذائی اجناس اور فوڈ پیکٹس تقسیم کر رہی ہے. بہادرپورہ کانسٹینسی کے اندر جہانما ڈویژن میں اس گلشن نگر علاقہ ہے، اس علاقے میں آج راشن کی کٹوں کی تقسیم کا اجرائی کا پروگرام تھا. جہانما ڈویژن 800 پاکٹوں کو جہانما ڈویژن میں بانٹا جا رہا ہے. آج تقریباً 150 پاکٹاں بانٹے گئے ہیں، اور آگے جا کے کل پرسوں میں اور آگے جا کے ٹوٹل 800 تک جہانما میں بانٹی ہیں. جب سے لاک ڈاؤن چالو ہوا تھا، جب سے جہانما ڈویژن، فلکنما ڈویژن، نواب صاحب کنٹا ڈویژن، کشن باغ ڈویژن، دودھ بولی ڈویژن، دیگر ڈویژنوں میں ہر جگہ بانٹے جا رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین حتی الامکان کوشش کر رہی ہے تو جہاں تک ہو سکے غریبوں کو، غریب عوام کو راشن کارڈ، جس کو بھی راشن نہیں ہے ان کے راشنہ ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرے.
इंशाल्लाह ताला और भी कोशिश होते रहेगी। बस आपके चैनलों के ज़रिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वर्कर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर डिवीज़न के अंदर, हर बस्ती के अंदर हमारी तरफ से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों के घरों में अनाज पहुंचना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सोच थी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों के लिए फ़िक्रमंद था, उस सारे चीज़ों को देखते हुए हर जगह राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बराबर ये मानता हूँ कई इलाक़ों में राशन नहीं पहुंचा, उनके भी सोशल मीडिया के ऊपर जो मुखालिफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं, ख़ास तौर से महल्लों में जाकर इंटरव्यूआं लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारा मकसद ये है हर एक के घरों के ऊपर हम राशन पहुंचाने की कोशिश करें। पेट भरने वाला अल्लाह है, कोशिश करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह ताला और भी कोशिश जितनी हो सकी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महिला, हर बस्ती, हर घर को राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे। और भी प्रोग्राम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, इंशाअल्लाह ताला उस प्रोग्राम जब भी होगा आपको इत्तला दिया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। माइग्रेंट्स लेबर के मामले में रियासती और मरकजी हुकूमत की सर्द मोहरी के खिलाफ बतौर एहतजाज साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने गांधी भवन में आज एक दिन की भूख हड़ताल की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गरीब मजदूर लॉकडाउन की वजह से नकल मकानी के लिए मजबूर हुए हैं। उन्हें उनके आबाई मुकाम को पहुँचाने की जिम्मेदारी ना तो रियासती हुकूमत कबूल कर रही है और ना ही मरकजी हुकूमत ले रही है। सैकड़ों लोग पैदल ही निकल पड़े। तवील मसाफत, खाने पीने की सहूलतों के दम दस्तियाबी के सबब वो रास्ते में ही दम तोड़े। हनुमंत राव ने उत्तर प्रदेश में लारी के हादसे में जो कल पेश आया 25 माइग्रेंट्स लेबर की हलाकत पर भी अफसोस का इजहार किया। माइग्रेंट लेबर कोरोना आए जब से स्टेट सरकार बोली 3.5 लाख है और बाद में बोले 14-15 लाख है। उनको सही गांव को भिजाने के वास्ते सरकार फेलियर हो गई और हम भिजाने गए तो उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। उसी वजह से हमारा राहुल गांधी भी आज दिल्ली में जो हरियाणा में माइग्रेंट लेबर है उनसे बातचीत करें, उनकी क्या तकलीफ है बात करें। साथ ही प्रियंका गांधी भी बोली भैया उत्तर प्रदेश सरकार हमको 10,000 बस दिए तो हम सबको लेके आएंगे, मगर अभी तक ना केंद्र सरकार स्टेट सरकार पर फेलियर हो गया। ऊपर से आज 25 लोग का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। और यहाँ पर धूप में एक औरत अपनी बेटी को कंधे पे बिठा लिया और सर पे कहीं की अपना बैग लगा के जा रही, ये हालत है। तो इसी वजह से सरकार का नजर इस तरह तवज्जो होने के वास्ते हम एक दिन का एक तो जो मर गए वाले की फैमिली को हमारी सहानुभूति करेंगे और साथ ही साथ कंडोलेंस ऐसे चीजों को खत्म करना है। तो केंद्र सरकार, स्टेट सरकार अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। या तो मुख्यमंत्री अपोजिशन की बात ही नहीं सुनते। दूसरी बात, सिलसिला में हम बसेस तैयार करे, परमिशन दिए, उसके बावजूद भी टीआरएस वाले आके दादागिरी करके बस को रोक दिए। तो ये काम नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में माइग्रेंट लेबर के वास्ते ये कानून बनना चाहिए ताकि कोरोना जब तक ये वैक्सीन तैयार नहीं होता ये चलते रहेगा और गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा। अगर माइग्रेंट लेबर नहीं रहे तो डैम नहीं बनता, माइग्रेंट लेबर है तो रोड नहीं बनता, माइग्रेंट लेबर है तो बिल्डिंग नहीं बनता। तो माइग्रेंट लेबर का ज्यादा देश आगे बढ़ने के वास्ते डेवलपमेंट में योगदान है माइग्रेंट लेबर का। उनके साथ इंसाफ होना बोल के हम एक दिन का यहाँ धरना करें। इसमें हमारे जग्गा रेड्डी साहब पार्टिसिपेट करें, बोलू किशन से वैसी रामलू नायक, निरंजन कुमार, प्रेमलाल, सभी लोग इसमें काम करें, धरना में बैठे ताकि स्टेट सरकार और केंद्र सरकार का आंख खोलने का काम करेंगे इनके ऊपर। वो भी इंसान है,
वो इंसान को कि नहीं दे के बोल के हम धरने पे बैठे। कुतुबुल्लाहपुर के सुभाष नगर में स्क्रैप के गोदाम में आतिशबाजी का मुहिम वाकया पेश आया। 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। लोगों ने गोदाम से धुआं निकलते हुए देखकर ही पुलिस और फायर इंजन को इत्तला दे दी थी। हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए साफ सफाई के प्रोग्राम के तहत रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव की अपील पर आज दूसरे इतवार को रियासती वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने श्री राम नगर कॉलोनी और बंजारा हिल रोड नंबर 13 के सलम इलाकों में साफ सफाई का काम अंजाम दिया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 हफ्तों तक हर इतवार को सुबह 10 बजे साफ सफाई की मुहिम चलाने की अपील की, जिसमें तमाम रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और सरकारी अहदेदारों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही। लॉकडाउन से फायदा उठाते हुए शहर में जीएचएमसी की तरफ से सड़कों की तामीर और रीकारपेटिंग के काम का हैदराबाद के मीर बी राममोहन ने मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत शहर में मोरद अल्तवा तरक्याती कामों को भी पूरा करने के बारे में संजीदा है। सोशल मीडिया पर आवामी मसाइल की यकसुई करने और उनकी मदद के लिए आगे आने के लिए मशहूर वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने 2 यतीम बच्चों ई अजय और अंजलि की मदद के लिए आगे आ गए। उन्होंने नलगुंडा के जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पटेल को इन बच्चों की फौरी मदद करने और उन्हें तालीमी साल के आगाज़ पर रेजिडेंशियल स्कूल में भर्ती करवाने की हिदायत दी। एक सहाफ़ी ने इन बच्चों से मुताल्लिक़ ट्वीट के जरिए वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो मबज़ूल करवाई थी। चुनांचे जिला कलेक्टर की हिदायत पर मौके में ख़वातीन वतफाल की अहदेदार पद्मा ने मर्री गड्ढा मंडल के मौजे लंकला पल्ली में इन बच्चों के घर का दौरा किया और तमाम तफसीलात भी हासिल की। यादाद्री भुंगीर में गवर्नमेंट व्हिप जी सुनीता महेंद्र रेड्डी ने मुस्लिम ख़वातीन में रमज़ान तोहफे के तौर पर ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि केसीआर हुकूमत लॉकडाउन के चलते परेशान हाल गरीब लोगों की मदद कर रही है। चुनांचे चीफ मिनिस्टर ने तमाम सफेद कार्ड खरीदों को 12 किलो चावल और 1500 रुपये की रकम देने का ऐलान किया। इस मौके पर मौजे मल्लापुरम के सरपंच के वेंकटैया, ZPTC मेंबर अनुराधा, TRS के कायदीन और दूसरे भी मौजूद थे। कोविड-19 से मुतालिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टास्क फोर्स के चेयरमैन M शशिधर रेड्डी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसान सेल के नायब सदर M कोदंदा रेड्डी और साबिक वजीर दामोदर रेड्डी के हमरा नलगुंडा असम्बली हल्के के किसानों से मुलाकात की और मौसमी की फसल और उसके दामों के बारे में मालूमात हासिल की। बाद आज़म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन तीनों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोविड-19 के चलते विटामिन से भरपूर और मौसमी की फसल को खरीदने का वादा किया था। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने गुज़िश्ता माह नलगुंडे में मार्केट का इफ्तिताह भी किया, लेकिन दूसरे ही दिन वो मार्केट बंद हो गई। जिले जोगुलंबा गढ़वाल जो कभी कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर था, उससे मुकाबला करते हुए कोरोना वायरस से पाक हो गया है। जिला सुप्रीडेंट पुलिस के अपूर्व राव ने माह अप्रैल में कई चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी कामयाब हिकमत अमली को रोबे में लाया। गढ़वाल टाउन के महल्लेजात मोमिन महल्ला, गच्चीपेट, विद्यनगर, रेवेन्यू कॉलोनी और जेमी चंडूक को महफूज करते हुए कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। बाहर के मरीजों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। पड़ोसी जिले कर्नूल और जिले गढ़वाल की सरहद पर चेकपोस्ट कायम किए गए। जिले कलेक्टर सरवती ऊजा ने भी इस पूरे काम में भरपूर ताउन किया। जिले वनपर्ती में भी कोरोना वायरस का डटकर मुकाबला किया गया। चुनांचे वहाँ एक भी केस नहीं हुआ। इसकी वजह भी वहाँ की कलेक्टर यास्मीन पाशा की हिकमत अमली है, जिन्होंने पहले ही कड़े और एहतियाती इकदाम किए। यास्मीन पाशा ने खुद बनफ्स नफीस कॉलोनी में जाकर साफ सफाई की मुहिम चलाई। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों में इमदाद का काम जारी है। असम्बली हल्के कारवान के इलाके जात शेखपेट और गोलकुंडा में अदर तरतीब 1200 और 1000 राशन किट्स की कायदे मजलिस मकराना पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिसी कारपोरेटर्स और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। इन तमाम इलाका जात के अंदर जहाँ पर कंटोनमेंट जोन थे, उन इलाका जात के अंदर भी सदर मोहतरम की हिदायत पर राशन किट्स और तरकारी दीगर चीज़ों का वहाँ पर सरबराही की गई थी। और उसी तरीके से अब जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद कई मरतबा जनाब अकबरुद्दीन साहब की जानिब से कारवान के अंदर, गोशा महल के अंदर और दीगर शेखपेट डिवीज़न के अंदर राशन किट डिस्ट्रीब्यूट अमल में आए। आज फिर एक मरतबा लॉकडाउन होने के बाद दूसरी या तीसरी मरतबा यहाँ पर कारवान के अंदर और शेखपेट के अंदर और
बारिश की वजह से 2 दिन पहले जो कारवान के अंदर प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया था और वहाँ पर भी गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कल रखे 2 बजे। मैं फिर एक मरतबा जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात के बाद भी घंटे घंटे को 2-2 घंटे को हल्क़े कारवान के और गोशामहल शेखपेट डिवीज़न के ताल्लुक़ से वहाँ की आवाम, वहाँ के जो मसाइल के ताल्लुक़ से पूछते हैं। और फिर एक मरतबा मैं सदर मोहतरम का जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे को लाखों रुपए की यहाँ पर राशन किट को दिए गए। मैं फिर एक मरतबा जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तवक्को के मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र ने अपनी रियासत में चौथी मरतबा लॉकडाउन में तोसी करते हुए उसकी मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी है। चीफ सेक्रेटरी अजय मोहित ने कहा कि रियासत को कोविड-19 से शदीद खतरा लाहक है। रियासत में कोविड-19 के जुमला 30,706 केसेस हुए हैं और उनमें से 696 की मौत हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के करीबन 5,000 नए केसेस के इजाफे के बाद इस वबाई मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 90,927 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 120 नई अमवात हुई हैं। खुशाइंद बात यह है कि पूरे मुल्क में अब तक 34,108 मरीज शफायाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र बदस्तूर सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहाँ 30,706 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद गुजरात और फिर तमिलनाडु अदल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। उड़ीसा में कोरोना वायरस के ताज़ा 91 केसेस का पता चलने के बाद रियासत में इस वबाई मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 828 हो गई है। रियासती महकमे सेहत के एक ज़राए ने यह बात बताई। हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज जल सेवा आज मजीद 558 हिंदुस्तानियों को मालदीव से अपने मुल्क को लेकर आ गया। इसमें 497 मर्द, 70 खवातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि 6 खवातीन हामिला भी थी। मुल्क वापस होने वालों में 568 का ताल्लुक केरला से है, जबकि माबाकी 20 का ताल्लुक तमिलनाडु, तेलंगाना और लक्षद्वीप से है। हिंदुस्तानियों को वापस आने की ये दूसरी कार्रवाई है। 12 मई को भी 698 हिंदुस्तानियों को मालदीव से वतन वापस ला लिया गया था। कायदे मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद में 5 करोड़ रुपये मालियती 70,000 से ज़ायद राशन किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी ने उनके इस इक़दाम की ज़बरदस्त सराहना की और कहा कि परेशानी के हालात में लोगों का ख्याल रखना और उनकी मदद करना अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है और अल्लाह ताला ऐसे कामों के लिए अपने पसंदीदा अशखास का ही इंतखाब करता है। सदर मजलिस ने शहर के दीगर अस्हाब सरबत और मुखैर हजरात की तरफ से इमदादी कामों की सताइश भी की। और आखिर में ये बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से उन्होंने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा में अब तक बल्कि पूरा उन्होंने फूड किट का जो इंतज़ाम किया है अपनी जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी ने करीब 5 करोड़ 10 लाख की लागत से उन्होंने फूड किट्स तैयार किए हैं। और मुझे भी जनाब उनके ज़िम्मेदारों ने, उनके साथियों ने मुझे बताया है कि अब तक वो सालारे मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से 70,000 फूड किट शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद के मुख्तलिफ़ असम्बली हल्क़ात में बशमूल उनका असम्बली हल्का चंद्रायन गुट्टा में वो दे चुके हैं। ये फ़क़ीदुल मिसाल ख़िदमत है उनकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल करे और उनका टारगेट ये है कि 1 लाख अभी 30,000 और किट वो माह मुबारक रमज़ान में गरीब और मुस्तहक़ अवाम को देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी एक अहम बात यह है कि अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से ये नहीं देखा जा रहा है कि फ़ूड किट किसको मिलनी चाहिए, कोई मुसलमान को मिले या हिंदू को मिले या दलित को मिले या ओबीसी भाई को मिले। मकसद ये की है कि इस लॉकडाउन में जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अनप्लान्ड तरीक़े से किया गया, कोई मौका नहीं दिया गया किसी को सांस लेने का, इंतज़ामात करने का रियासती हुकूमतों को। ऐसे मुश्किल वक्त में आज ये आगे बढ़कर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं अकबरुद्दीन अवैसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके ट्रस्ट के उनके ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम की खिदमत को कबूल करे।
ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل, ایچ پی, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ سلیکشن